Hello student, welcome to Gate Guruji. I am with you Mahendra Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic that is conduction, convection, heat transfer through composite slab. So in the previous class, I have discussed the electrical analogy of heat transfer. There I have talked about the conduction heat transfer through the composite slab. But here in this class, both conduction and convection simultaneously in the composite slab. So we are going to drive this. We are going to do the lots of numericals, and many times the questions have been asked in GATE examination as well as engineering service examination. So let's start. So we are going to discuss the conduction convection heat transfer through composite slab. First of all, before discussing the conduction convection heat transfer through the composite slabs, you are well familiar with the term thermal conduction resistance or conduction resistance, but you are not aware so far now about the convection resistance. So applying the similar concepts like you have applied for conduction resistance, similarly we can also write the convection resistance. So what will be the convection resistance? So first I will discuss the convection resistance. If you know it, then I will go for the combine. So now after knowing that, you will be in the state where you will be knowing that conduction resistance and convection resistance. So I can apply this phenomena, this concept to the composite slabs, and I can get the expression. So what is the convective thermal resistance? Convective thermal resistance. If I say convective thermal resistance, you know, for the convection, there is a one governing law, basic law. For conduction, there is one governing law, that is the Fourier law. For convection, this is the Newton's law of cooling. So from the basic equation, we know that Q convection is equal to HA delta T, right? So we know from the electrical analogy of the thermal resistance concept, right, as V is equal to IR in electrical resistance. So what is the I stand for here? The heat. So I is equal to V by R. You write it, or you write it R is equal to V upon I. So V in case of thermal resistance, thermal will be the delta T, and I will be the Q, and this will be your R. So here, if you want to find the thermal resistance, R thermal convection, so I have to take the delta T by Q convection. So if you take delta T by Q convection, this will be equal to 1 upon HA, because delta T here in RHS, and if you divide with LHS, here 1 will create, and if you equate it 1 upon HA. So this is the basic formula for this is the basic formula for conduction, convection resistance. So by this way, we have calculated the convection resistance by applying the simple electrical analogy concept as you have applied for thermal resistance. So thermal resistance, conduction resistance, we know. What is the R thermal conduction? Just I will recall it here because we are going to discuss both conduction and convection. So you will see the thermal conduction resistance is Kx upon Ka or some B upon Ka, that you know it. So we are going to use this for thermal conduction, and for convection resistance we are going to use 1 upon Ha, right? So what will be the unit of this? If you want to talk about the unit of the convection resistance, will be, for temperature it is Kelvin, and for convection it is the heat actually
So it is a Q convection, so I can write it joule per second. And in heat transfer we write the rate of heat transfer, that's why it is not joule, it is joule per second, which is watt. So I can write it K per watt or kW, you can write it. So this is the unit of thermal convection resistance. So we are now familiar with the term 1 upon H. 1 upon H is the convection resistance. Thermal resistance is X upon K. We are going to use this for composite slabs. So are you ready? Move further. Now one more thing here. One more thing here that I am going to discuss is that it's a very simple phenomena. If it is R thermal convection resistance and you see it 1 upon H. So if H value is more, agar H value is more, so higher the heat transfer coefficient, higher the value of heat transfer coefficient, right? What exactly you are going to see? The lesser is the thermal resistance. So if thermal resistance is less, so what exactly you can say about the heat transfer? What exactly you can see about the heat transfer? So if it is less, of course heat transfer will be more. So thermal resistance will be less. Thermal resistance is what? Opposes the flow. So here you see that the RT is equal to delta by Q convection. So if R thermal is less, if this is less, this should be much more. For the same temperature difference, this Q convection should be more. So higher value of H will indicate the lesser thermal resistance, right? And in fact, in heat transfer, the research, the main or major objective of the heat transfer research is that to get the higher value of H. कैसे भी करके हीट ट्रांसफर H लाना होता है. खैर चलिए, हम गेट IAS की बात कर रहे हैं तो रिसर्च भूल जाइए, आते हैं सीधा टॉपिक पे. तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, बढ़ेंगे आगे. अब हम बात करते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंपोजिट स्लैब. नाउ वी नो द थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस, नाउ वी नो द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, सो आई कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स फॉर द कंपोजिट स्लैब्स. So suppose I have this composite slab. The first material is having some thermal conductivity K1. This is the first. Or now second is, this is second material and this is K2. This is the slab. One phase you are seeing it. It will be inside the screen also. So some thickness will be also there, right? That you know it. So if somewhere some temperature is say some T1 at this phase, right? So you know there will be a thermal gradient from the Fourier's law of heat conduction. There will be a temperature gradient here, and the final temperature will be T2 here, right? And in the same way, again, it depends upon what is the thermal conductivity in the second stage. It will further degrading, and here you will see that the temperature drop at this stage will be T3. And what happens? This is the case where we are going to see that both conduction and convection resistance. So inside there is a conduction, and here we see that the hot gases is coming and going inside this slab. So if there is a hot gases, there is a fluid surrounding this space. So here we'll see that there will be the temperature of the hot gas. This will be going inside. Hot gases have some temperature, right? And it is a gases, flow of gases, so it is a convection. So whether it is free convection or maybe the forced convection, and we say that if it is the hot gases, so it have some convection heat transfer coefficient. It may be air, water, whatever. So H1 watt per meter square Kelvin will be given. Whatever the fluid present here, it will have some H, and H will be watt per meter square Kelvin. Similarly, we are considering here the one-dimensional heat conduction. The assumption is that one-dimensional. So if you are going to considering the X direction, so heat is entering in the X direction. So again, it will leave in the X direction as well. And here we'll see that the heat will also lose from this phase. And here again, some surrounding fluids will be there. So it will have some heat transfer coefficient H2 watt per meter square Kelvin. And this is my cooled fluid. Yes or no? समझ आ रहा है? Cold fluid T infinity. तो नॉर्मली सराउंडिंग फ्लूइड्स हम कंसीडरिंग, यहाँ हॉट गैस का टेम्परेचर TG बोल रहे हैं,
और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हम T इन्फिनिटी कह रहे हैं। अब बोलोगे सर ये T3 क्या है? T3 इज इंटरफेस टेम्परेचर, ये इस सरफेस का टेम्परेचर है, इसके बाहर जो फ्लूइड है वो T इन्फिनिटी होगा। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर ये बराबर हो जाए इंटरफेस का, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं होगा। इंटरफेस टेम्परेचर विल बी डिफरेंट देन द सराउंडिंग फ्लूइड टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी कुछ थिकनेस होगी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज B2 एंड द थिकनेस हेयर इन दिस केस विल बी सम B3, तो सॉरी B1 कह देता हूँ, दो ही तो है, तो B1 कह देता हूँ इसको, और इसको कुछ B2 कह देता हूँ, ठीक है। सो वी नो द थिकनेस ऑफ द स्लैब एज वेल एंड वी आर अज्यूमिंग हेयर द TG विल बी मच ग्रेटर देन द T इन्फिनिटी। मतलब ये हॉट गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कंपेरेबल नहीं है। मान लो ये 30 है तो ये 32 होगा, तो क्या हीट ट्रांसफर होगा, ज़्यादा हीट टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे TG मच ग्रेटर देन द T इन्फिनिटी, और ये सारे कंडीशन दिया हुआ है। इस केस में जो हमारा अजम्पशंस था, जो हमने लिखा है, ये मानना पड़ेगा कि वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, या ऐसे स्टेडी स्टेट से ही शुरू करो, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन या वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर बोलो, क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन भी है, जनरलाइज कर दो, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख रहा हूं HT, राइट, बिटवीन गैसेज एंड कोल्डर फ्लूइड थ्रू द कंपोजिट स्लैब। मतलब गैसेज कंपोजिट स्लैब हम यहाँ पर वन डायमेंशनल हीट मान रहे हैं, टू डायमेंशनल होगा तो फिर इधर से भी जाएगा तो थोड़ा फेनोमेना अलग हो जाएगा। हाँ? यहाँ पर अपने सिलेबस में गेट में और IAS में भी यही वन डायमेंशनल ही है। सो दिस इज द केस ऑफ कंपोजिट स्लैब। यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट स्लैब दिया हुआ है, व्हाट इज द कंडीशन इनसाइड आउटसाइड, that we have known it. What is the thermal conductivity K1, what is the thickness, everything is known to us. Now we are going to apply the electrical analogy concepts. Are you ready? तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी रेजिस्टेंस है यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह है तो हम इसके लिए थर्मल सर्किट लिखने वाले हैं, जैसे कंपोजिट स्लैब में होता है, मैंने सिखा चुका ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हीट ट्रांसफर में। तो क्या करना होगा, यहां पर लिखेंगे जैसा कि आप लिख सकते थे, जैसा कि आप लिखते थे कंपोजिट स्लैब के लिए, यहां पर हम लिखेंगे थर्मल सर्किट। जो बोल रहे हैं सर्किट बोलो, सर्किट बोलो। सो दिस इज द थर्मल सर्किट, अंडरस्टूड। नाउ हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू राइट इट, देयर इज अ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यहां पर हम शुरुआत आते ही सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस पर लिख दो ना। तो यहां पर सबसे पहले टेम्परेचर से ही शुरू करते हैं, TG टेम्परेचर से लेते हैं, जैसा कि हम वोल्टेज में करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या लेते थे, B1 B2। यहां पर हम लेंगे TG हमारा ये टेम्परेचर क्या है यहाँ का, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इस फ्लूइड का। तो फ्लूइड का रेजिस्टेंस बोले तो 1/HA, और यहाँ H1 है तो H1A, राइट। एरिया विल बी सेम, तो A1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर एरिया डिफरेंट होगा तो हम A1 A2 A3 लिख सकते हैं। सो केस है, अब यहां से चला ये हॉट गैसेज, तो TG चला, ये रेजिस्टेंस लिया, यहां पर आया, तो इसका टेम्परेचर क्या है, T1, दिस इज द इंटरफेस टेम्परेचर, अंडरस्टूड। फिर इसके बाद क्या है, अरे इसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस। अब ये इससे पास होगा हीट, इसका रेजिस्टेंस इसको ये अपोज करेगा, भाई हीट मत पास ना, तो ये अपोज करेगा, यहां पर हो जाएगा इसका थिकनेस क्या है, B1, तो B1/KA, और K क्या, K1A, ये हमारा हो जाएगा कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैब 1। फिर उसके बाद कौन से इंटरफेस टेम्परेचर पे, यहां से ये हीट चल के पहुंचेगा यहां पर, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2। एंड आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से फिर से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और ये होगा जब ये T2 आया है तो ये दूसरे स्लैब से भी जाएगा, दूसरा कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी द B2/KA, K2A। फिर ये पहुंचेगा कहां पर, T3 पे, कहां पहुंचेगा, T3 पे पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, तो मैं यहां पर ये रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे आगे बनाना है। तो ये हमारा T3 आया, तो हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी इसमें जैसे कंपोजिट स्लैब में अगर ये कंबाइंड कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होता, कंबाइंड कन्वेक्शन कंडक्शन नहीं होता तो हम यहीं पर रोक देते। लेकिन चूंकि कन्वेक्शन है, यहाँ इनसाइड में भी, एंटर के साइड में भी है, और जब लीव कर रहा है तो वहां पर भी फ्लूइड है, तो यहाँ पर भी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा, और हम इसको भी कंसीडर करेंगे, इसलिए कंबाइंड कन्वेक्शन कन्वेक्शन तो जो कंप्लीट स्लैब है इसका नाम,
यहाँ लिखेंगे फिर से ये 1 अपॉन, देखो इसमें कोई थिकनेस उकनेस का कोई चक्कर नहीं है, और सिर्फ H2A लिख देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, और यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या होगा, T इन्फिनिटी। सो दिस इज द थर्मल सर्किट वी हैव रिटन इट। हम रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं और ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट स्लैब, थ्रू कंपोजिट स्लैब। रेड कलर कैसा लग रहा है आपको, पेन कलर के बारे में बताइएगा। अगर किसी को रेड कलर पसंद नहीं है, हमारे पास इसमें एक कलर पसंद आ ही जाएगा। हम स्क्रीन भी बदल सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन भी है हमारे पास, व्हाइट स्क्रीन भी है, एनी हाउ, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं पॉइंटर ऑप्शन, इंक कलर में जाते हैं, और इंक कलर आपको कोई और कलर अगर पसंद है, ब्लू पसंद है, तो हम ब्लू भी ले सकते हैं। सो कंपोजिट स्लैब का क्या होगा फॉर्मूला, ब्लैक भी चाहिए तो ब्लैक भी हो सकता है। यहाँ देखिए, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ थर्मल हीट ट्रांसफर, अगर इस केस में हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा V1 माइनस V2 बाई आर टोटल, यही तो होता है। अगर हम लिखें तो TG माइनस T इन्फिनिटी, देखो इनिशियल टेम्परेचर इसका यहाँ पर क्या, जहां से एंटर कर रहा था, एग्जिस्टिंग टेम्परेचर क्या है, T इन्फिनिटी, और इसमें इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस का ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आर थर्मल जितना भी है ये टोटल, ये लेना पड़ेगा, देन विल गेट द हीट ट्रांसफर, थर्मल हीट ट्रांसफर थ्रू द कंपोजिट स्लैब। ये कितना हीट यहां से एंटर कर रहा है ये हमें पता चलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में हीट ट्रांसफर सेम होगा, जितना भी हीट फ्लो हो रहा है स्लैब 1 में उतना ही स्लैब 2 में है, लेकिन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये मतलब हम ये कहें TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टोटल, हमारा सारा रेजिस्टेंस ऐड करो, पहला हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है H1A प्लस दूसरा हमारा है B1 बाई K1A प्लस दूसरा फिर से थर्मल रेजिस्टेंस B2 बाई K2A प्लस फिर से कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1 अपॉन H2A. So if all the values will be given, I will put it and I will get the answer. So there is no big issue. I can do it. So this is about the heat transfer. Now sometimes you may be seen that you may be asked to find the rate, or instead of rate of heat transfer we are going to find the heat flux. तो हीट फ्लक्स क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आप कहते हो Q डॉट डिवाइड बाय एरिया, अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हीट फ्लक्स आ जाता है। तो मतलब Q बाय A की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं Q बाय A निकालने की कोशिश करूं इस केस में, तो चूंकि A हर जगह सेम है और ये नीचे में है, ऑफकोर्स इसको कॉमन लोगे तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, आप इंजीनियरिंग में आ गए हो तो इतना तो पता चल ही गया होगा। तो अगर मैं इसमें से A निकाल लूं, हर जगह से कॉमन ले लूं, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो Q बाय A हमारा हो जाएगा TG माइनस T इन्फिनिटी। अगर इस कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसको भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है उन स्टूडेंट्स का भी जो स्लो लर्नर है, उन स्टूडेंट का भी जो मीडियम लर्नर है, और उन स्टूडेंट का भी जो आग है, छूना मत, फास्ट लर्नर है, जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो खुद से कर लेगा। उस पृथ्वी पे एक दो लोग ऐसे भी पर मौजूद हैं। तो एक टीचर की जो रिक्वायरमेंट है और एक संस्था की रिक्वायरमेंट, वो सभी का ध्यान रखे। स्लो लर्नर को आप कैसे आगे लाएंगे, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। इसलिए अगर आपको कोई तकलीफ है तो हमें बताइएगा, और हम सीख के अच्छा बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। सो 1 अपॉन HA प्लस B1 बाई K1 प्लस B2 बाई K2 प्लस 1 अपॉन H2, ठीक है, ध्यान रहेगा, बढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से हमारा इतना वाट पर मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इतना वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होगा। आप इसको चाहो तो किसी डब्बे में बना के भर दो, फाइनली आप इसे बॉक्स बना लेना। देखो मैं ये जो कर रहा हूँ डेरिवेशन, आप इसका नोट बना लेना, और नोट बनाने के बाद देखोगे, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं नहीं मिलेगा, और इतने कम प्राइस में तो कहीं नहीं मिलेगा। बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट, हमने देखा कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर। अब हम देखेंगे डिफाइनिंग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U। तो अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, अरे भाई हमने कंडक्शन सीखा, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर देखा, एक साथ अगर हो रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। क्यों ना एक ऐसा एक सिंगल एंटिटी ले लें जो हर तरह के रेजिस्टेंसेस को एक साथ ही कवर करे।
यानी आप कह रहे हो 1/HA B/K सेपरेटली लिख के ऐड कर रहे हो, टोटल ही तो कर रहे हो, अरे टोटल ही तो कर रहे हो, तो क्यों ना हम एक सिंगल एंटिटी मान लें और उसको कहें कि डिफाइनिंग द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, मतलब हम यू की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो यू है ये भी एक प्रकार का हीट ट्रांसफर है, लेकिन ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। क्या कहता है ये कहता है कि मैं एक सिंगल एंटिटी हूं जो दुनिया के हर तरह के रेजिस्टेंस को अपने आप में संभालूंगा। डेफिनेशन देखिए, it is defined as a parameters which takes into account all the modes of heat transfer into a single entity। कोई घबराने की जरूरत नहीं, अरे तीन ही तो मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसमें जितने भी रेजिस्टेंस पैदा होंगे और उसमें भी कंडक्शन और कन्वेक्शन की, उसको एक साथ अगर देना है तो यू दे दीजिए, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, यू ओवरऑल है। तो कैसे करेंगे इसको डिफाइन, चलिए अब ये देख लेते हैं। भाई हमारे पास इक्वेशन है कि भाई Q इजिकल टू, किसी को कुछ नहीं मालूम तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम कहते हैं HA डेल्टा T। तो अब H मत बोलना, क्या बोलना, UA डेल्टा T। समझ आया? Instead of saying that HA delta T, I am going to say that this is UA delta T। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है ये। अरे आपका हीट इतना ही होगा और हीट ट्रांसफर का हीट है तो वाट होगा, जूल पर सेकंड होगा। थर्मोडायनामिक्स का हीट होता तो जूल होता, हमें मालूम है। तो UA डेल्टा T हो गया, जहां पर डेल्टा T टोटल, यहां पर हम क्या कहेंगे, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इन द इंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में जितना टेम्परेचर है वो सब ले लो। सो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इन द इंटायर नेटवर्क, जो हम नेटवर्क क्यों आ गए, यहां से हमने सर्किट बनाया था ना, इन द इंटायर नेटवर्क। समझिए इस बात को, ये हमारा है डेल्टा टी के बारे में। ये क्या है, एरिया ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें मालूम है। और यू हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सर यू का यूनिट क्या होता है, अरे जो एच का होता है वही है यू। एच को हटाओ यू लगाओ, एच को हटाओ यू लगाओ, यू लगाओगे तो सारे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब बोलोगे सर क्या कनेक्शन है, कुछ इसका कुछ कनेक्शन है, मतलब आपने जो पहले किया था, मान लो कंडक्शन कन्वेक्शन एक साथ किया था कि नहीं किया था, मैंने कहा हाँ किया था। उसको अगर यू में हम बोलें तो क्या होगा, उसकी वैल्यू, यू की वैल्यू क्या, अरे एच की वैल्यू 1/A होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस B/K होता है, तो यू की वैल्यू क्या, अरे यू डिपेंड करेगा कौन सा केस है। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस केस कंपोजिट स्लैब लिया था, 2 स्लैब थे, उसमें दोनों तरफ H1 और H2 था, तो उस केस में यू की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि यहां से देखो बोले कि अगर हम लिखें Q/A इस केस में तो क्या होगा, इस केस में अगर हम Q/A लिखें तो ये होगा U डेल्टा T। यस और नो? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, वो मैं दिखा देता हूं पीछे जाके, वो मैं दिखाता हूं पीछे जाके। अरे यही तो लिखा Q/A, ये Q/A है। अगर आप नोट बना रहे हो, आप देखो, आप चाहो तो इसे पॉज करके लिख लो और अभी सीख लो, लाइव तुरंत सीख लो। पॉज करो और लिखो TG माइनस T इन्फिनिटी, यही तो हमारा ओवरऑल डेल्टा T है, और ये नीचे में कुछ लगा हुआ है। तो मैं अगर इस तरफ लिखूं, सो वी हैव, यहां पर हमारे पास क्या है कि आपको मालूम है पिछले से दूसरे इक्वेशन से Q/A इजिकल टू हमारे पास क्या था, TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1/H1 प्लस B1/K1A प्लस, ये तो गया था, सॉरी ये गया था B2/K2 plus 1/H2। yes or no? So this is basically what, this is your delta T। तो अगर हम देखें, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, इसका LHS इक्वल है कि नहीं है, Q/A है कि नहीं है,
तो क्या होगा, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे यहां, आप देखो कहोगे कि u डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई 1 अपॉन h1 प्लस b1 बाई k1 प्लस b2 बाई k2 प्लस 1 अपॉन h2। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो यहां पर ये डेल्टा टी से डेल्टा टी ये फिनिश हो गया, तो आपको यहां पर क्या बचता है, जो बचा हुआ है वही तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। फिर से आ जाते हैं हम अपने इस कलर पे, और अब हम यहां पर देखेंगे व्हाट इज u। सो वील सी दैट द u इज इक्वल टू 1, ये तो कट गया, 1 अपॉन h1 प्लस b1 k1 प्लस b2 k2 प्लस 1 अपॉन h2। ठीक है, तो ये आपको, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, या ब्रैकेट में कर लेना, रेक्टेंगल कर लेना पूरा अच्छे से। सो दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कई बार पूछते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या कहता है। सो इट टेक्स into account all the modes of heat transfer, give you the single heat transfer coefficient। और इससे हमें पता चलता है कि हाइयर द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हाइयर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अगर ये ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ये जो रेजिस्टेंस है लोअर द थर्मल, ये हम कह सकते हैं लोअर द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, लोअर द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, या आर इसको कह दूं आर टी एच टोटल, ये कम होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो यही तो हमारा ओवरऑल, ये टोटल, ये क्या है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब ये आर टी एच टोटल है। तो अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा है तो ये कम होगा, अगर आर थर्मल ज्यादा है तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी कम होगा। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम होगा तो यहां से देखो इस वाले फॉर्मूले से ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, अगर ये कम होगा तो हीट ट्रांसफर भी यहां कम होगा, यस और नो।